May He shower upon you all His divine grace. May He bestow upon you all His divine love and peace. As I was saying, the process of meditation. You are aware about your little awareness and very small structure, physical and subtle too. In this structure, there is a consciousness in the form of feeling, knowledge, or wisdom too. And your consciousness become identified with this small structure. Though consciousness has no limit, no division, but due to identification with this body, it looks like divided and in finite form too. That becomes root cause of our suffering. Religion or yoga teaches you that try to elevate yourself from this limited structure and try to be one with Supreme Cause, that is infinite. Real self is infinite, not finite, but looks finite due to this finite body. This finite body is only projection of divine energy, infinite energy too. So on the gross level also, when you will think deeply, you will find out that your real cause is infinite, either in gross level or in subtle level or causal level. This finite is only projection of that infinity. So purpose of religion and purpose of meditation is to be one with that cause and be aware always about that cause. When you will be aware about that cause, then automatically you will be yogi. If you will do any action with awareness, then that action will change into form of yoga. Okay? And that is called karma yoga. Yoga in action. That is called karma yoga. Yoga means feeling union with infinity, Godhead. You can give any name. Okay? That is called yoga. So yoga means feeling union with Supreme Cause. So when your feeling will, guide your senses, your mind, your body, and you will act according to that. So your whole action will change into form of karma yoga. Okay? But if your attention is not about your cause, but you are busy with effect, you are identified with this small structure, and you are feeling that this is your own fault. Okay? And whatever you will do with this position, that will be not karma yoga, but karma bhoga. Bhoga is always related with limited force, and yoga is related always infinite force. Okay? Where there is infinity, there is happiness. In Veda we are reading, Bhuma eva sukham na alpam. Okay? Happiness is residing into infinity, not in finite.
your body is not infinite, that is finite, but its cause is infinite. So when you will pay your attention in cause, then you will be one with infinity. And you will realize happiness. But when you will be identified with this finite form, and you will accept this is your own real self, real life, then automatically you will be prey of suffering. I don't think that any power in the world can make you free from suffering. Okay? Because your all prayers, your all techniques, all religious activities are only for fulfilling your inner demand. And that inner demand is related with infinity, not finite. Okay. So if you want to be true religious person, not follower of religion, okay, be aware about it. You can be follower of religion, but you can't be religious person. But happiness is residing in that religion, not being follower of religion. So when you will be real religious person, then you will feel ecstasy in your own life. And if you are following religion, okay, as millions of people are doing, you can do the same. But you can't be free from suffering. Okay? In Upanishad, in Veda, in Gita, in Mahabharata, in Ramayana too, we are reading same ideology. Same ideology. As you know, I am teaching here Bhagavad Gita, Karma Yoga. This main ideology of Karma Yoga. So be aware about this fact and try to elevate yourself from this limitation and try to put your mind into infinity. This is the first step of practice and this is the last step of practice too. Okay? The great seer Patanjali taught, Prayatna Shaithilyam Ananta Samapatibhya. This first step. It means just try to stop your all activities, physical activities, okay? And try to put your mind into infinity. This is the first step of meditation. And what is the end of meditation? When you will merge into infinity, and you will realize infinity only. Okay? At that stage, when you will forget your finite entity, and you will be one with infinity, that is the highest stage. At the end of your practice. So practice starts from infinity and gets end into infinity too. Okay? And yoga and philosophy or Veda, all treatises, teaches you, be aware about truth. What truth is? As I told you many times, that infinity appear into finite form. Okay? When will we be aware about this truth? That whatever we are seeing in visible form, in finite form, that is nothing but projection of infinity. Automatically you will be aware about infinity in diversity. Okay? Unity in diversity. When you will realize unity in diversity, then you will achieve highest good. In Veda there is very great hymn, in Yajurveda, Yasmin sarvani bhutani atma eva abhut vijanata. Tatra komoha kashoka ekatvam manupashyata. When a person realizes that
one supreme cause appear in so many name and form, he become free from anxiety and infatuation because of his realizing oneness in all. So when you will realize oneness in all, automatically you will be free from anxiety and infatuation. Tatra ko moha, infatuation, and ko shoka, anxiety. Ekatvam manupashyata. He was realizing oneness in all. How anxiety and infatuation will come in his life. So my dear, you will be free from both. And this is the aim of our practice. This is the aim of religion. Okay? Whatever you are doing in daily routine, and you are earning money, you are feeding yourself and your family. Okay? All these activities are going on only for your real self. But demand of self is totally another. Not all these, whatever you are doing day and night. Your real self always demand to achieve highest good. Okay? That highest good appear in three forms: immortality, infinity, and eternity. Be aware about it. Three things. Infinity, eternity, and immortality is our inner demand. We want to immortal because death is not dear to any person. Never. We are seeing day and night people are dying. But we can't or never imagine about our own self. Okay? Sometimes by the way we can say, yeah, one day I will die too. But when other person says same thing, become scared. Why? If death is our natural end, then why we are scared from death? That is a great question. And our great seer taught, no. Death is not dear to you because death is not end of your life. Okay? Your life is immortal. But your immortal self become identified with this finite form. And that finite form is changeable. It will die one day. But when it will die, be aware, you will be alive. But that fear is due to you become one with that finite form. So you are immortal due to this. Mortal world is not dear to you. The same way, you are infinite due to that. Limitation is not dear to you. Always you want to be unlimited. Okay? And same way, you are eternal due to that. Change is not dear to you in your own level. So eternity, immortality, and infinity, these are your real nature of your real self. But when you become identified with this mortal world, mortal body, okay, then you automatically become prey of infatuation. And due to that, you suffer. So be aware about this truth. And lead proper life and try to elevate yourself through meditation. There is no other way. Okay? When you will be put your mind into infinity, and then behave in this mortal world, then you will be karma yogi. This main sutra in Bhagavad Gita about karma yoga. Brahmani adhaya karmani sangam tyaktva karoti yah.
he who is putting his mind into Brahman, Brahman means supreme cause, Brahmani adhaya, karmani, sangam tyakta karoti, and being detached and working in the sphere. लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा मीन है, अंग्रेजी में से मीन कहते हैं, तुच्छ है, स्वार्थी है, और आप अविद्या, अविद्या माने न विद्यते इति अविद्या, जो नाशवान पदार्थ है उसके लिए आप रातों दिन मर रहे हैं, अपने आप को मानते पंडित हैं आप, कर्म उसके लिए कर रहे हैं जो नाशवान है, जो 4 दिन भी नहीं रहने वाला आपके साथ। तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन मन, अपने मां भोग ज्ञानी है, वो बहुत ज्ञान आपका 2 कौड़ी का है। ज्ञान का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं आप? यदि आप अविद्या में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपका ज्ञान कौन महत्व रखता है? तो वेद कहता है जघन्य माना पर्यंति मूढ़ा, कहा वो केवल मूर्ख ही नहीं है, वो तो जघन्य प्राणी है। जघन्य माने गिरा हुआ, बातें ज्ञान की करता है और प्रयत्न अविद्या के लिए, संसार को अधिक से कितना इकट्ठा कर ले, रातों दिन उसी की चिंता में लगा हुआ है बड़ा पंडित। उस ज्ञान का क्या प्रयोग है? जो दूसरे के हित में प्रयुक्त न हो। इसलिए कर्मयोग के सिद्धांत को ऐसे समझ लें कि यदि कर्म सेल्फलेस है फिर तो आप कर्मयोगी हैं, और यदि कर्म सेल्फलेस न होकर के सेल्फिश मोटिव से युक्त है तो आप कर्मयोगी नहीं, कर्मभोगी हैं। और कर्म भोग का परिणाम अच्छा और बुरा दोनों होता है, वो मिलेगा। भारत में एक बहुत प्राचीन काल में राजा हुए, उनका नाम था नृग, राजा नृग। बड़े यशस्वी राजा थे और उनका दिन भर दान देने का एक काम था, दान दिया। और सबसे बड़ा दान भारत में गोदान माना जाता है, इसलिए वो गौ दान देते थे। और उनका नियम था 1000 गौ रोज दान करते थे। लेकिन उस दान के साथ अहम जुड़ा हुआ था। एक दिन एक गाय उन्होंने दान दी एक ब्राह्मण को। ब्राह्मण गाय लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचा, वो गाय वहां से भगी और ब्राह्मण उसको ढूंढते हुए चला। वो गाय आकर के गऊओं के झुंड में फिर मिल गई। महाराजा नृग ने एक दूसरा ब्राह्मण जब आया तो वही गाय उसे दान दे दी। तो तुमको क्या पता कि वही गाय है? अब जिस ब्राह्मण को गऊ दान दिया वो ब्राह्मण गऊ लेकर जा रहा था और जिसकी गाय भक्कर के आ रही थी वो उधर से आ रहा था। जब उसने गाय देखा तो पहचान लिया कि तो मेरी गाय है। उसने पकड़ लिया, भाई मेरी गाय कहाँ ले जा रहा तू? वो कहता हमें तो राजा से दान मिली है। कहा राजा ने मुझे भी दान दिया था ही। एक गाय राजा 2 आदमी कैसे दान दे सकता है? वो लौट करके आया, कहा चलो राजा क्या फैसला कर ले। राजा के आ गए दोनों। भगवान का विधान बड़ा विचित्र है। उस ब्राह्मण ने कहा राजन ये गाय तो मुझे आपने दान दी थी कल और हमारे यहां से झोपड़े से बकर के आ गई। राजा ने कहा कि भाई मुझे स्मरण नहीं था, भूल हो गई मेरे से। कहा फिर यह है कि इस गाय के बदले में तुम दूसरी गाय ले लो। कहा ना मैं तो कल दान लिया इसलिए मैं दूसरी नहीं ले सकता, मैं तो यही दान लूंगा। उस ब्राह्मण से कहा भाई तुम ये दे दो, तुम्हारे लिए हम दूसरी गाय दे देते हैं। उसने कहा ना ये तो मुझे अभी दान में मिले, हम कैसे दे सकते हैं? राजा के सामने कोई उसका उपाय नहीं। क्या किया? बड़ी कोशिश की, उन ब्राह्मणों ने कहा प्रश्न नहीं पैदा होता।
ये एक सिंबल है, सिंबॉलिकल। एक ही वस्तु दो व्यक्ति को दान दे दी गई और उसके बदले में जानते हो क्या फल मिला राजा नृग को? दोनों ब्राह्मणों ने गांव छोड़ दी हुई पहले और वहीं श्राप दिया, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और राजा नृग गिरगिट होकर, गिरगिट जानते हो एक जानवर होता है गिरगिट, तो गिरगिट होकर के वो एक कुएं में पड़े रहे 1000 वर्ष, 1000। सूरदास जी ने लिखा है, भागवत की कथा है, सूरदास जी ने भी लिखा है, कोटि गऊ राजा नृगदीने गिरगिट होई भवकूप परे। करोड़ों गऊएं दान दी थी उन्होंने, लेकिन परिणाम में गिरगिट होकर के उस कुएं में गिरे वो। और उनका उद्धार कैसे हुआ? जब वो रोने लगे कि ब्राह्मणों मेरा कोई कसूर नहीं है, आप बताओ मेरा उद्धार कब होगा? तो ब्राह्मणों ने कहा कि देख राजा, तू जो ये दान करता था ये अपने अहंकार के नाते करता था, इसलिए इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। 1000 वर्ष तक तू गिरगिट बनेगा। लेकिन जब तुम्हें धर्मात्मा युधिष्ठिर का दर्शन होगा उस समय तू अपने इस योनि से मुक्त हो जाएगा। द्वापर में महात्मा युधिष्ठिर का दर्शन करके उसका मोक्ष मिलेगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि पुण्य का प्रताप करोड़ों गौ देने वाले की गति हुई, लेकिन रंतदेव ने एक मुट्ठी सत्तू दिया था दान में, एक मुट्ठी, और वो परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिया कि उसके पास वही एक मुट्ठी था। रंतदेव ने अपना सर्वस्व दान जब दे दिया तो वो दोनों पति पत्नी और बेटा उनका वो सिल बीनने लगे, यानी जो बाजार में दाना गिरा होता है, सड़क पर मार्केट में गिरा होता है वो दाना, उसको एक एक करके वो बीनने लगे तीनों। और 40 दिन में, 40 दिन तक पानी पीकर रहे थे, 40 दिन में उनको एक पाव अन्न इकट्ठा और उसको भून के उन्होंने सत्तू बनाया। और जब तीनों खाने के लिए बैठे तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। किस वेश में? एक चांडाल के वेश। और आवाज लगाया कि मुझे 1.5 महीने से कोई अन्न नहीं मिला है, मैं भूखा तड़प रहा। रंतदेव ने कहा कि हम तो केवल 40 दिन के भूखे हैं और ये तो 45 दिन का भूखा है, इसलिए पहले इसका अधिकार बनता है। रंतदेव बुलाए उसको, चांडाल को, आइए आइए वहां से विराजी, भोजन कीजिए। और उन्होंने 3 पत्तलों पर रख रखा था सत्तू, पहले अपना पत्तल दे दिया उसे, वो खा गया। और चाहिए, भूख लगी, अपने स्त्री का भी पत्तल दे दिया उसे, कहा और चाहिए, कहा भूख लगी। अब उनको समझ आया कि पुत्र का पत्तल कैसे दे, तो स्त्री तो अर्धांगिनी है, उस पर मेरा अधिकार है, लेकिन पुत्र तो स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखता है। लेकिन पुत्र ने देखा कि मेरा पिता दान करना चाहता है लेकिन धर्म के नाते नहीं कर रहा, उसने तुरंत उठा करके सत्तू दे दिया। तीनों 40 दिन के भूखे थे। जब वो खा लिया सत्तू, फिर पूछते हैं कि अब तो कुछ था नहीं, तो पूछ ही नहीं सकते कि और चाहिए। कहा अतिथि देव, अब हमारे पास जल बचा हुआ है। कहा कि मुझे प्यास लगी है। उन्होंने जो जल मिला था तीनों, जब उस स्त्री ने सेवन कर लिया तो पूछा कि राजन, 40 दिन के प्रयत्न से तुम्हें एक मुट्ठी सत्तू मिला था, वो तुम उस चांडाल को, चांडाल वेश में थे, उस चांडाल को तूने दान में दे दिया। तुम्हें यह चिंता नहीं कि तुम्हारा इकलौता पुत्र भूख से तड़प करके मर जाएगा? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें न अपने मरने की चिंता है, न पुत्र के मरने की चिंता है, न स्त्री के मरने की चिंता है। ये शरीर तो नाशवान है, आता जाता रहता है, लेकिन वेद कहता है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। तो मैं तो अपने भगवान को समर्पित किया है, न किसी चांडाल को, न किसी ब्राह्मण को।
उनकी इतनी बात सुनकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ही थे जान डाल के। तो एक मुट्ठी चावल जो था, यानी एक मुट्ठी सत्तू जो था, वह भगवत प्राप्ति का साधन बन गया, क्योंकि वो सर्वस्व दान था। क्या समझे? आपका सर्वस्व क्या है आपके ऊपर निर्भर करता है। 1 करोड़पति का 1 करोड़ धन सर्वस्व है, लेकिन एक भिखारी का तो एक मुट्ठी अन्न ही सर्वस्व है ना। तो जो दान 1 करोड़पति के पूरा संपत्ति देने का मिलेगा, वही फल उसको मिल जाएगा। भिखारी ने 1 मुट्ठी दिया है क्योंकि उसके पास 1 मुट्ठी था, उसका सर्वस्व वही था, उसने दान दे दिया। तो उसमें मात्रा की महिमा नहीं है, उसमें महिमा की है, उसमें महिमा है देने की। उसका जो सर्वस्व था उसने दे दिया। जो व्यक्ति करोड़ों रुपया रखा हुआ है, उसमें से यदि 10 उठाकर दान दे दिया, 100 दे दिया, 1000 दे दिया, वो दान नहीं हुआ, कि उसने अपने सत्व का नहीं दिया उसमें कुछ। उतना तो समाज के व्यक्ति का हिस्सा है तो देता है। दान वहां शुरू होता है जहां से अपने सत्व का देने लगे, तो तुम्हारा अपना है, उसमें से जब तुम देते हो तो दान कहा जाता है। ये बात याद रखो। जो तुम आय करते हो, कमाते हो, उसमें से सबके हिस्से बने हुए हैं, और शास्त्र में इसकी व्यवस्था है कितना हिस्सा किसका है तुम्हारी आय में। गीता में भगवान ने कहा कि यदि उसका हिस्सा बिना उसे दिए तुम अकेले भोग कर रहे हो तो तुम चोर हो। तैर दत्तान प्रदायोभ्यो योग भुंक्ते तेन एव स। तुम्हारी कमाई में जितने लोगों का सहयोग है, तुम्हारी कमाई में उतने लोगों का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है? शास्त्र कहता है कि तुम्हारी कमाई का मूल स्रोत क्या है? कहा हमारी योग्यता। कहा तुम्हारी योग्यता के निर्माण में कितने लोगों का सहयोग रहा है, उसको तुम देखो। तो उसको शास्त्रकारों ने 5 भाग किया है। 5 भाग। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने इसकी व्याख्या की है। न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतव। 5 हेतु होते हैं तुम्हारे कर्म। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधा विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। ये 5 के सहयोग से तूने कर्म किया। जैसे सबसे पहले शरीर, अधिष्ठान। बिना शरीर के तुम कर्म नहीं कर सकते, तो शरीर के लिए तुम क्या करते हो? भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। तो भोजन और पानी का निर्माण कौन करता है? तुम स्वयं करते हो। अन्न पैदा करने वाला कोई और है, फल पैदा करने वाला कुछ और है, समाज है। जिसके सहयोग से तुम्हें अन्न और पानी मिला है, किसके सहयोग से मिला है? तुम ये स्वयं अनुसंधान करो। जिसने तुम्हारे शरीर को पुष्ट किया है, इसलिए तुम्हारे शरीर के द्वारा जो उत्पादन होगा उसमें उसका एक हिस्सा है। जिसने तुम्हारे शरीर को पोषण दिया है, अधिष्ठान। और दूसरा योग्यता, कर्म के लिए योग्यता। तो योग्यता कहां से मिली है तुम्हें? योग्यता का स्रोत अलग है। तुम्हारे इस कमाई में उस योग्यता के स्रोत का भी हिस्सा है। और योग्यता के साथ टेक्निक, उसको हमारे यहां करण कहते हैं, वो अलग है। योग्यता को चेष्टा कहा गया, वो टेक्निक अलग है। उसके लिए तुमने अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माता कौन है? उसका अलग हिस्सा है। और इन चारों को इकट्ठा करके तुम्हें प्रोवाइड करने वाला एक स्रोत है, जिसको दैव कहते हैं, जिसके संरक्षण में तुम इन चारों का प्रयोग कर रहे हो। एक उसका हिस्सा है और एक तुम करता हो। इसलिए तुम्हारे आय के 5 भाग होते हैं। $100 कमाते हो तो उसमें केवल 20 तुम्हारा अपना है। समझिए, 80 तुम्हारा अपना नहीं है। गीता की भाषा में यदि 80